this is the fifth slide of it. And I had stayed on this slide and explained a lot on that because this was the central slide for the entire process per se. So I tried to I tried to spend my time there explaining these things in detail, concepts. I'm just zooming it out a little so that you can see it very clearly. Okay. So after having done this slide, we can go to the elaborations which I've already done, but I'll just take you through it. So preclinical studies part. So in preclinical studies part, there is synthesis and purification of the new chemical entity. We are calling it as the possible new drug. Then we will be understanding pharmacology of the new drug, that is pharmacokinetics. Pharmacokinetics includes how the drug is being absorbed, then how is it distributed in our system, in our body system, how it is metabolized, that means how the liver enzymes are going to be acting on it, specifically the CYP class of cytochrome P class of enzymes. Then the kidneys excreted, the broken down metabolite part of the chemical entity or the drug, as you want to say, would be broken down. So it's in the metabolite form. Majority of it will be excreted, okay, in the first part. Otherwise, some would be excreted in the first part, and the remaining will be excreted in certain time duration. So whatever is a chemical substance which has come in the body as a foreign element is excreted out by our system. So the time period it remains in the body, in the blood system, in the plasma is called as the full life of the drug. And the time taken to remove half of it from the blood circulatory system is called as the half-life of the drug. So it's a very known norm. What we do is we look at the half-life, and based on the half-life we calculate how much should be the dosages and how many times should be the dosages per day. Okay, so that is what is half-life here mentioned out. Then there is pharmacodynamics, that is mechanism of action and estimation of therapeutic effects, how the drug is going to be affecting our body system, what changes it will be bringing across, and how relevant it is, clinical manifestation. Toxicology includes carcinogenicity, mutagenicity, and teratogenicity. So a chemical substance should not be cancer causing, that is carcinogenic, mutagenic, or teratogenicity. Teratogenicity, when we are saying congenitally transferring out and doing defectiveness in the newly growing embryo or the later stages of development. So these are the things which you check it out. One of the commonest tests which you do is Ames test to find out the mutagenicity, teratogenicity, and carcinogenicity of the substance which you are identifying or which you are thinking will be later becoming a drug or a new drug point of view. Next, when we go down to, we will be studying the efficacy on animals. So I told you, beta, in animals you have to study the efficacy in 3 different species. Minimum 3 different species have to be studied out. So in 3 different species, if you prove that the drug is efficacious and safe, then that's the animal study completion. So going to the next one, this is the application which I told you, investigational new drug. This is an application for administering a new drug to human. So I had shown in the depicted in the diagram, previous diagram, when we had seen here, we had seen IND submission. And after IND submission, I had said in the clinical studies, it goes down to first in human studies. So IND means investigational new drug is a permission which you are seeking to test the chemical substance, that is new chemical entity, in humans, first in human studies. Outlines the proposal to use the new drug for human testing in clinical trials. That means it is giving an outline of how you're going to be doing it out. And that is mentioned in a document called as protocol, okay, which is approved by the Independent Ethics Committee or the Institutional Review Board. These are the review ethic committees, so to speak there.
Studies in humans can only begin after IND is reviewed and approved by FDA and an institutional review board. So you can see IRB or IEC is the first board which will be reviewing it out. Then you will be sending it across to the FDA for permission as IND. And that's the time, once it is being given the permission, which is about 30 days odd for a waiting period, you can go ahead with the first in human studies. So what all occurs in clinical studies? So there are three basic entities of clinical studies. There are actually four parts, but we normally look at three first before approval. And post-approval is the fourth one. So the three are phase one, which is called efficacy studies on healthy volunteers, specifically safety and efficacy on healthy volunteers. That means you are in the phase one study trying to find out if it is safe in non-immunocompromised individuals. Non-immunocompromised individuals means those who are perfectly fine, they do not have any disease, and if it is safe in them, that means you can then try it on someone who is having a disease, that is an immunocompromised person. Phase 2 is clinical studies on a limited scale. So phase 2, you do not expose it to a long or a large gathering or large population per se. About 100 to 200 odd is a normal number. So that's for safety and efficacy from that point of view. Phase 3 is the efficacy part where you are actually trying to prove, okay, it's efficacious or not, because phase 1 and 2 has given the safety parameters more. So phase 3 is the comparative studies on a large number of patients, and based on all these study reports, you have a clinical study report. Since the clinical study being conducted, the report is called as clinical study report, and this clinical study report is submitted, okay, in the form of a CTD, common technical document, and along with that you will have something called as new drug application. So first was IND for permission to study in the human population, and then after phase 3 is done, you would submit the report stating what was the result of it and new drug application perspective. Because if it would have been successful, if it would have been doing good, it was safe, efficacious, and the risk benefit proportion is more towards the benefit as compared to risk, you can go ahead with the NDA, new drug application, which will be reviewed by the regulatory body, have some meetings as we have seen in that part, and then finally approved, and that approval is called as marketing approval, marketing administration and approval, MAA. So you have phase 4 afterwards. What is phase 4 is that when you have studied all these studies being conducted, it was in a controlled population. Controlled population in the sense you are considering that in your clinical trial you had the representation, randomized representation of all various genetic makeup of human beings. But you can't ever reach that part. There may be some genetic makeup which will be a little different from others, and that's what is the genetic makeup, because genetics is governed by environment. So the representative sample which you are considering as a control group does not mean it's the representative sample of the entire population. So when the marketing occurs and this drug is taken by people in general, in all walks of life, you come down to know the safety perspective of it. So hence, post-registration, marketing approval and authorization, when the drug is in the market, you keep an eye on it in terms of regulating it out, knowing what is the utility of it, clinical efficacy of it, and safety of it. That means you are doing a vigilance. So this is called as pharmacovigilance or phase 4 studies. Okay, madam. So these were the study details in phase 4, which you normally typically look into. So next is an elaborated detail of phase 1, as I mentioned out. Typically involves 20 to 80 healthy volunteers. Normally you do not have children or women being there in the study because you do not want to expose them to harm at any stage point of view. Normally. Emphasis on drug safety. Goal is to identify the major side effects, metabolism, and routes of excretion. Lasts about 1 year. Usually 70% of the drugs
pass through this phase. When I say pass through this phase, I mean are successful in this phase. Okay? Do not take it as because every drug has to go through phase 1, phase 2, phase 3 trials. Okay, any questions still here, beta? Anyone has any questions? Please do ask. No, sir. Okay. Next is the phase 2 trial, as we were talking about. Typically, as I said, 100 to 300 individuals. Now, these are patients also. So, this is not only healthy volunteers, it's patients also. So, the emphasis is on effectiveness. Patients receiving the drug are compared to similar patients receiving placebo or another drug. It can be comparative trial. You have something called as clinical trial design, which will go into details of it. It lasts about 2 years, and approximately 33% of the total drugs which uh, are tested, that means new chemical entities are tested, are able to pass through this phase, because 70% is only at the phase 1 level. Phase 2, the success rates are 33% only. So you can see the narrowing effect funneling down. So next is phase 3. When we look in phase 3, as I said, this is the one where the efficacy has been proven on a major part, along with safety being there. In a large population, typically 1,000 to 3,000 patients. In diabetes trials, it goes up to 10,000, 20,000 patients also, because of its widespread nature. Investigates through well-controlled studies, lasts about 3 years or so, and only 25 to 30% of the drugs are able to pass this phase from the total new chemical entities as of record. So new drug application, so pre-NDA period, FDA and drug sponsors meet, so drug meetings are commonly being there. So it's an interactive phase. It's not like that you only go and submit the data, you meet in between. So the sponsor meets the FDA guys to keep them abreast of the studies going on. The submission of NDA is the one where you have formal considerations to drug marketing. Then FDA has 60 days to decide whether it will be filed for approval consideration or not. So that means you have seen the IND is 30 days and NDA it is 60 days. Beta. Approval time point for. So 1 month and 2 months. That's the way. So FDA's role, the review team evaluates the research on the safety of the drug and effectiveness. The review team goes to the drug labeling and understand what's in the label part, that's mentioning the right thing, inspect facilities for standard procedures being done, checks out for microbial load of organisms on the packages, and checks out for the shelf life mentions of the packages, transportabilities, and every other aspects. So it also approves additional information from the sponsor. You would have the drugs being continually assessed, at safety of the drug being checked out. You also look for reports if there is anything worrisome which has been informed of that class of compounds, as we had seen in NDA in our video last time, thalidomide. When we have seen thalidomide, it is one particular entity which could be probably a little bit worrisome, because if you have so many worrisome aspect being mentioned out, you would want to check it out before it is reaching the patient. So these are the ones which you normally look into, and these are the ones which are the most important parts of these perspectives of FDA's role of its in terms of regulatory part. Phase 4 is post-marketing surveillance, PMS it's also called, or it's also called as pharmacovigilance, which looks out for adverse effects, adverse reactions. It also looks into pharmacoeconomics, which is about cost effectiveness of the drugs, comparative trials, and in cases of trials where you are mentioning about only improving the quality of life, like for example, there are terminally ill cases in cancer, there is no specific treatment available. So your drugs are gonna ensure that the longevity is there, or your drug is gonna ensure that the person is able to survive
whatever days he is surviving in a better way. This is called quality of life questionnaire. So this is the resource from where you can go ahead and see the details of it. Any details which have been mentioned can be cross-validated, checked out and elaborately read through. So guys, this was about the stages of drug development first part. Any questions till now, beta? कोई questions है आपके दिमाग में, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो प्लीज. Yes guys? No sir. कोई क्वेश्चन नहीं बेटा? ओके ठीक है. अच्छा बेटा, तो अभी ये पीपीटी मैंने आपको दिखाया. अब मैं आपको कुछ वीडियोस इसी कंटेक्स्ट में दिखाने जा रहा हूँ. ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाए थे. ओके, उससे आगे दिखाने वाला हूँ. कुछ वीडियोस और रहेंगे जो ड्रग डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो आई टेक यू टू दैट पार्ट. सो आपके लिए 3B मैंने आपको शायद दिखा दिया था. अच्छा बेटा, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था या नहीं, आप मुझे कंफर्म करो बेटा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर यू आर सीन दिस वीडियो और नॉट. Okay sir. बेटा ये ट्रेंड्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स के बारे में बात करता है. ट्रेंड्स इन फार्मा. Today we start at the earliest phase of drug discovery and development. ओके, आपको शायद नहीं दिख हाँ स्क्रीन नहीं नहीं. आया ना बेटा? हाँ. ओके, वन सेकंड बेटा, मैं आपका फिर वापस रीशेयर करता हूँ. मुझे बताना बेटा, आपको अगर स्क्रीन दिखाई दिया हो तो. Yes sir, दिख रहा है. ओके बेटा, ये बेटा ये आपने पहले देखा है क्या? आपको ये स्क्रीन याद है, ऐसा देखा आपने करके? No sir. ओके ठीक है बेटा. तो बेटा ये ड्रग डेवलपमेंट का चैनल है, यानी ड्रग डेवलपमेंट जो चल रहा है बेटा, ये पीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वन रीजन बेटा. यू आर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ एमएससी एंड आफ्टर दिस यू विल बी गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जाते वक्त आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ सॉल्यूशंस रहेंगे और कुछ आपके कैपेबिलिटीज रहेंगे. यानी क्या रहेगा स्पेसिफिकली, जब आप किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन होंगे तो कुछ नॉर्म्स आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है आज के डेट में. यानी अभी मैं अगर आपको कुछ पहले इंटरेक्ट करके आपसे समझ लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ बेटा. सपोजिंगली बेटा, अभी आपको सपोज HIV, अच्छा नहीं क्वेश्चन से पूछता हूँ बेटा. आपने एक डिजीज का नाम सुना है, एड्स, AIDS. उसका फुल फॉर्म बता सकते हैं बेटा मुझे? Sir, Yes, guys. autonomous immune disorder. Absolutely, acquired immunodeficiency syndrome. Okay बेटा, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS करके डिजीज है बेटा. इस डिजीज में क्या होता है कि आपका बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरा का पूरा वीक कर देता है. और इस डिजीज में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो खुद आपको नहीं मारता है, बट इम्यून सिस्टम गायब हो जाने के कारण कोई और सेकेंडरी डिजीज से पर्सन का डेथ हो जाता है. ओके, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैटेगरी में आता है. ओके, तो अब इसका कॉजेटिव एजेंट बता सकते हैं बेटा? व्हाट कॉजेज एड्स? HIV. HIV virus. यस, HIV Human तुरंत. immunovirus. हाँ, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, दैट्स करेक्ट. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV करके बेटा. Deficiency तो ये वायरस, virus. हाँ, ये वायरस से आपको प्रॉब्लम होता है. करेक्ट.
अब इसका बेटा आज के डेट में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी अगर HIV है तो आप उस पर्सन को थोड़ा, नॉर्मली HIV से पर्सन का डेथ 10 to 15 ईयर्स के टाइम पॉइंट में होता है, यानी 10 से 15 साल उसको जीने को मिलता है। लेकिन ये टाइम पॉइंट का लाइफ अच्छा करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करने के लिए यह मेडिसिन अवेलेबल, बट इवेंचुअली ज़्यादा अपन उसको स्टॉप नहीं कर पाते। ओके, ओनली थिंग कहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, तो मदर से चाइल्ड में नहीं होगा। प्लासेंटल ट्रांसफर बंद करवाने, प्लासेंटल ट्रांसफर बंद करने के लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है ज़ेडुवुडीन। ज़ेडुवुडीन का नामक मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ है, विच इज एबल टू स्टॉप द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस फ्रॉम मदर्स बॉडी टू द ग्रोइंग चाइल्ड बॉडी। यानी एक मदर को HIV हो सकता है, लेकिन उसके चाइल्ड को, जो जब बर्थ देगी चाइल्ड को, तो चाइल्ड को HIV पास नहीं होगा। इतना अपन कर पाए अभी तक। तो अभी बेटा इसके अगेंस्ट में आपको मेडिसिन बनाना है, सपोज ये तो टारगेट है ही, मतलब मेडिसिन बनाना है, तो आप कैसे मेडिसिन बनाओगे? यानी आप मेडिसिन मतलब कैसे बनाओगे, यानी ये वायरस को मारने के लिए बनाओगे या फिर कुछ और तरीके से बनाओगे? इसका मेडिसिन कैसे बनाओगे? वायरस को मारने के लिए बनाओगे, राइट? Yes, sir. यानी आप Yes, ऐसा कोशिश करो कि वायरस को मार। अच्छा, तो अब ये वायरस को मारने के लिए अगर आपको मेडिसिन बनाना है तो आप वायरस को कैसे मार सकते हो? मतलब मुझे बता सकते हो बेटा, हाउ वुड यू किल अ वायरस इनसाइड अ लिविंग होस्ट? कैसे मारोगे उसको? so you are asking in context of medicine or you are asking in context of immune system? नहीं बेटा, आई एम आस्किंग इन कंटेक्स्ट ऑफ, सी बेटा, अगर आप इम्यून सिस्टम के हिसाब से बोलोगे तो भी चलेगा। इम्यून सिस्टम कैसे मारेगा उसको तो बोला तो भी चलेगा। अपने को वायरस को खत्म करना है, तो आप वायरस को खत्म करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पर मुझे बताओ कि आप क्या करोगे जिससे वायरस खत्म होगा? इम्यून सिस्टम को एनहांस करके भी उसका ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन हम रोक सकते हैं, लाइक उसको इनिबिट कर सकते हैं, बिकॉज ग्लाइकोप्रोटीन जो उसका लेयर है, जो उसके रिसेप्टर्स है, that virus is changing itself over there, so we can try to inhibit that, that changing of that glycoprotein capsule. Oh, good बेटा, दैट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, आई अप्रिशिएट योर थॉट्स बेटा, दैट्स करेक्ट। आपने बोला है कि आपका मोड ऑफ थिंकिंग ये रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से वायरस का आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, उसके ऊपर का, हाँ, जीपी, उसका वो उसके अंदर का एक प्रोटीन है GP128, ग्लाइकोप्रोटीन 128, जो प्रोटीन, अगर आप किसी तरीके से उसको आप खत्म करवा दो तो वायरस का ऑब्वियसली नेसेंट DNA एक्सपोज आउट हो जाएगा, या RNA, रेट्रोवायरस है, RNA एक्सपोज हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। करेक्ट बेटा, दैट्स द वे। तो आप उसका कोटिंग उड़ाने की बात कर रहे हो, ठीक है, दैट्स वन पॉइंट। ओके, अच्छा, कोटिंग उड़ाने से बेटा वायरस डिस्ट्रॉय होगा, आपको ऐसा लगता है? मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ बेटा, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वायरस का एक्टिंग के लिए नॉर्म जो है ना बेटा, वो अलग अलग तरीका है। आपको चाहिए तो मैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको ही आंसर करना है, HIV वाला। मैं आपको चाहिए तो कोरोना के बारे में दे सकता हूँ, जो फाइजर रिपोर्टिंग वाले में मेरे पास जो पड़ा हुआ एक वीडियो है, आई कैन शो यू फॉर कोरोना, कि कोरोना का वायरस कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं देता हूँ आपको। तो हम लोग को, क्योंकि अभी कोरोना का हम लोगों ने वैक्सीन निकाला, राइट, तो वैक्सीन फॉर्मेशन में हम लोग कैसे बने वो आपको बता सकता हूँ। तो कोरोना का दिखाऊं आपको, तो उससे आप मुझे HIV का आंसर दे पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir, we'll try. ठीक है, तो मैं कोरोना का आपको दिखाता हूँ। I'll show you कोरोना वायरस का, वन सेक, क्योंकि बेटा ये आपके लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट यू विल बी एक्चुअली डूइंग बेटा। क्योंकि आप जो थियोरेटिकल पढ़ते हो ना बेटा, वो आप एक्चुअल में रिसर्च में नहीं करते हो, आप उसका अप्लाइड कंपोनेंट, एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव यूज करते हो।
तो जैसे अभी मैं आपको फाइजर का फाइजर मतलब कोरोना वायरस का एक पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसे है और वो अटैक कैसे करता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए वैक्सीन बनाया। ओके, वैक्सीन बनाया तो वैक्सीन में हम लोगों ने उसका क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कि हम लोगों ने कोरोना में किया क्या पहले वो दिखाते हैं। ठीक है, तो कोरोना का फंक्शन पता था, कोरोना वायरस होता कैसे है वो वाला पॉइंट पता था। चलो, यानी कोरोना इन्फेक्शन कैसे करता है वहां से आपको बताना शुरू करेंगे हम लोग। Hi, this is Peter from Anatomy Zone. This आपको स्क्रीन दिख रहा है बेटा, कोरोना वायरस कोविड-19 लिखा हुआ? Yes, sir. ओके फाइन। तो मैं आपको ये प्ले करता हूँ, ये आपको कोरोना के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, इंक्लूडिंग कैप्सिड प्रोटीन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मतलब उसका इन्फेक्शियस रूट भी बताएगा और बाकी चीजें पैथोजेनेसिस भी बताएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस भी बताएगा। ओके, कोरोना का तो आप समझ लोगे, लेकिन इसके बेसिस पे आपको मुझे आंसर देना है HIV का, क्योंकि HIV में भी सेम स्ट्रक्चरल वाला है, इकोसाहेड्रॉन है। ओके, तो पॉलीहेड्रॉन इकोसाहेड्रॉन स्फेरिकल बोल सकते हो आप उसको। तो उसका आंसर आप दोगे, ठीक है गाइस? सो आई एम प्लेइंग इट फॉर यू, तो अपन ये वॉच करते हैं। दिस इज अबाउट 10 मिनट्स ऑन। video is the first in a new series we'll be producing on clinical conditions and their anatomical and pathological correlates. We will be taking a look in this आपको वॉइस आ रहा है बेटा? इज द साउंड क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, video at the structure of the coronavirus responsible for the current pandemic and how its structure causes its clinical manifestation. Coronaviruses are a large family of common viruses which are found in humans and animals. Many cases of the common cold are due to a coronavirus. They have caused two large-scale outbreaks in the past 2 decades: the SARS virus in 2002 and the MERS virus in 2012. It's generally been considered that these coronaviruses could cause future disease outbreaks because they're known to be able to evolve within animals and then jump to humans via an intermediate host. In SARS, palm civets and raccoon dogs were identified as the intermediate. COVID-19 is an example of this, which is believed to have jumped from bats to pangolins to humans in a local seafood market in Wuhan, China during 2019. COVID-19 refers to the coronavirus infectious disease found in 2019. The actual disease itself is referred to as COVID-19, but the virus is called the SARS-CoV-2, which stands for Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, and was named because its structure very closely resembles that of the SARS virus from 2002. This is the 7th known coronavirus to infect humans, 2 of which were similarly highly pathogenic, MERS and SARS. The other 4 are of low pathogenicity and endemic in humans. Let's now take a look at the structure of the SARS-CoV-2 virus. So looking at this virus, we can see that it has a series of protein spikes on its surface, which when viewed under a microscope appear like a crown, which gives rise to the name corona, which is Latin for crown and is therefore common to all the coronaviruses. There are 4 structural proteins which are similar to other coronaviruses: the S, the E, the M, and the N proteins. The S stands for spike, the E stands for envelope, the M stands for membrane, and the N stands for nucleocapsid. So let's take a look at these different structural proteins in turn, beginning with this crown-like structure, which is the S or spike protein. This protein is responsible for allowing the virus to attach to the membrane of the host cell. It contains a receptor binding domain which recognizes a specific receptor, the angiotensin converting enzyme receptor 2, which is expressed in the lungs, heart, kidneys, and intestines. It has been shown that this protein binds to the ACE2 receptor with at least the same affinity and potentially as much as 20 times greater affinity than the SARS virus. This could be one of the explanations for the reasons why it's spreading so easily. The spike protein itself has 2 functional subunits. S1 binds to the host cell receptor, and S2
mediates the fusion of the viral and cellular membranes. Because of the critical role this protein plays in binding to target cells and cellular entry, it is a particular focus in the design of vaccinations and medical treatments for COVID-19. Let's take a look at the next protein, the M or membrane protein. The membrane protein is the most abundant on the viral surface and defines the shape of the viral envelope. It can be thought of as the central organizer for coronavirus assembly and interacts with the other structural proteins. Moving on to the E or envelope protein. This is the smallest of the major structural proteins on the viral membrane, which appears to have several roles. We know that it is integral in the assembly and release of the virus from host cells, and during viral replication, it is largely localized at the site of intracellular trafficking, more specifically at the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. So essentially, the M and E proteins play a critical role in turning the host cell apparatus into workshops where the virus and our own cells work together to make new viral particles. Underneath the surface proteins, we have the viral envelope. This is the virus's outer layer that is derived from the host's cell membrane, so our cells or the animals. It's a fatty layer and worth noting that in contact with soap, it will break down, killing the virus. And this is the reason why hand washing with soap is so important to prevent the spread of this virus. Underneath this layer is what's called the capsid. This is a protein shell that encloses the genetic material of the virus. Inside this capsid, we have the nucleocapsid, or N protein. This protein is bound to the virus's single strand of RNA, which is where all its genetic information is held to allow itself to replicate. The N protein appears to be multifunctional. In particular, it essentially inhibits a lot of the host cell's defense mechanisms and assists the viral RNA in replicating itself, and therefore in creating new viral particles. So we've looked now at some of the important structural features of the SARS coronavirus 2. A lot of our understanding of the pathogenesis of COVID-19 comes from work on the original SARS virus. Because the viral structures and morphology are so similar, there is likely to be significant crossover in the biochemical interactions and pathogenesis. Let's now look a little more at how the virus infects humans. So the virus is spread mainly by respiratory droplets, i.e. a cough or sneeze, which aerosolizes the virus, allowing it to travel into our nasal or oral cavities. We also know that it can live on surfaces for hours and even up to a few days on some surfaces. So if you touch an infected surface, it's very easy to then touch your own face and inoculate the mucous membranes in your eyes, mouth, or nose with the virus. Initially, it can get into the upper airway, so the nasal or throat area, and this is why you can get those symptoms like a common cold: stuffy nose, headache, sore throat, and fever. It is within the mucosal epithelium of the upper respiratory tract where primary viral replication is thought to occur. Similar to SARS, SARS coronavirus 2 is able to get further into our respiratory system and into our lung epithelial cells, where further viral replication occurs. Let's talk a little bit more about the ACE2 receptor interaction. The SARS coronavirus 2 binds via its spike or S protein to the ACE2 receptor. This mechanism of binding is the same way that the SARS virus was able to bind to airway epithelial cells. The host cell has proteases, which are enzymes that break down proteins, and these cleave the spike protein. We think that this process activates the protein in order to trigger the process of membrane fusion before injecting the viral genome into the host cell. A similar mechanism of protein cleaving facilitates cell entry in influenza. As well as this mechanism of direct cellular entry, the virus may also enter the cell via endocytosis. This is the process by which material enters a cell after being surrounded by an area of the cell membrane, which then buds off inside the cell to form a vesicle. Once inside the cell, virus-specific RNA and proteins are synthesized within the cytoplasm. Further viral proteins are then assembled with the blueprint of information contained within the viral RNA using the host's cellular machinery, specifically the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, with specific processes to form the envelope glycoproteins.
New virions are then assembled by fusing to the plasma membranes and released as vesicles via the cellular exocytic secretory processes. So the stresses placed on our own cells by viral infection and the interaction of our own immune system with the viral antigens presented by the infected host cells lead to cell death. During this process of cell death, multiple inflammatory mediators are released, which creates an inflammatory response leading to a buildup of mucus and thickening and hyperplasia of the cells within our airways. This inflammation causes irritation of the cells lining our airways, which leads to the cough. Let's move further down into the lower respiratory tract now and see how the virus acts within the lungs. So to get there, let's take a look at the path that the virus might take. So looking at the trachea, or the windpipe, this branches into left and right main bronchi. These bronchi branch into lobar bronchi. We have 3 on the right and 2 on the left. And these then branch into segmental bronchi. The segmental bronchi branch into bronchioles, which terminate as respiratory bronchioles, at the end of which are the alveoli. The alveoli are the tiny air-filled pockets responsible for gas exchange. We have around 600 million of these alveoli, and they are responsible for exchanging oxygen and carbon dioxide between the blood and the air we breathe in. Due to the direct action of the virus, and also due to our own immune system's response to viral infection, the alveolar walls can become inflamed and thickened and fill the alveolus with fluid, which can impair their ability to exchange gases, and this can lead to the symptom of shortness of breath. In some people, this process of cellular infection by the SARS-CoV-2 virus can lead to an exaggerated immune response with a huge release of pro-inflammatory mediators, causing what is known as a cytokine storm. So, beta, this is the pathogenesis, and this is the way how the virus attacks, and this is the way how it had been attacking, and due to which people had died of pneumonia, and there was a requirement of the ventilators to be used out. Okay, so this was the way how the virus works, right बेटा? तो अब इसके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट में हम लोग को ट्रीटमेंट में पहले क्या करना पड़ा था, तो ये साइटोकाइन रिलीज होगा, तो ये साइटोकाइन रिलीज इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ओके, तो साइटोकाइन रिलीज का अभी किसी को कोई मालूम नहीं था कि हाउ टू ट्रीट इट. सो देयर वाज फ्यू डॉक्टर्स, जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो लोग बेटा मेडिसिन, आप ऐसा नहीं होता कि आपने एक मेडिसिन बनाया किसी एक चीज़ के यूज़ करने के लिए तो उसी के लिए यूज़ होता है. डॉक्टर्स अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से कुछ मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं किसी और फंक्शन के लिए, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि बॉडी में क्या फंक्शन चल रहा है, तो वो बॉडी में वो फंक्शन के हिसाब से मेडिसिन असरटेन करके देते हैं. जैसे अगर आपको मालूम होगा तो जैसे पेन किलर्स में एक एग्जांपल है बेटा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी जैसे आप पैरासीटामोल के नाम से बोलते हो सिंपल टर्म में. तो ये जो पैरासीटामोल यूज़ करते हैं इसका एक ही फंक्शन और पेन किलर अकेला नहीं होता है. जैसे पैरासीटामोल का एक और फंक्शन होता है कि वो ब्लड डाइल्यूशन का काम करता है, यानी क्लॉट फॉर्मेशन अलाउ नहीं करता है. तो ब्लड क्लॉटिंग अलाउ नहीं करता है, इसके लिए बेटा पैरासीटामोल हम लोग इकोस्पोरिन के फॉर्म में प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं. यानी जिनको हार्ट अटैक के चांसेस हो उनको अगर पैरासीटामोल खिलाते रहेंगे तो ब्लड डाइल्यूशन रहेगा. तो लो ग्रेड का लॉन्ग इंटेंस फंक्शन वाला पैरासीटामोल, जिसको इकोस्पोरिन के नाम से जाना जाता है, आपको दिया जाता है. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये डॉक्टर्स ने फाइंड आउट करके यूज़ किए थे. करेक्ट. तो आपको ये भी पता चला कि भाई वायरस के कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से कवरिंग्स होते हैं, और अपन ने उसके अगेंस्ट से फाइट करने के लिए क्या यूज़ किया कि अपन वैक्सीन बनवाएंगे. तो वैक्सीन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, mRNA यूज़ किया, क्योंकि ये वायरस का mRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कमांड सो दैट प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू हो सके. तो हम लोग उसके ट्रांसक्रिप्शन पार्ट को ही ब्लॉक कर रहे हैं. करेक्ट बेटा. तो ये इतना क्लियर है आपको कोविड के बारे में बेटा? तो कोविड का तो मैंने आपको बता दिया. तो अब आप इससे क्ल्यू लेके, जैसे आप में से एक फ्रेंड ने बताया कि यस देयर इज अ जीपी प्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन को अगर आप ब्लॉक करेंगे, तो ग्लाइकोप्रोटीन को ब्लॉक करने से या ग्लाइकोप्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने से क्या वायरस जो आरएनए है वो काम करना बंद कर देगा बेटा? क्या वो नया कोड नहीं बनाएगा?
हेलो, यस गाइस, हो सकता है सर। हो सकता है ना बेटा। अच्छा, तो बेटा मुझे अभी अभी आप वो उससे तो आप वायरस को नहीं मार पाओगे, तो फिर वायरस को मारने का और कोई तरीका है? कुछ और आप सोच सकते हैं बेटा वायरस को मारने के लिए? क्योंकि आपने एचआईवी के बारे में थोड़ा पढ़ा है बेटा, अपन ने एचआईवी के बारे में एचआईवी के बारे में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर एटलीस्ट देखा होगा, 12th में भी पढ़ा रहेगा, तो अपने वो स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट याद है बेटा। तो उसके हिसाब से और क्या क्या है जिसपे हम लोग अटैक कर सकते हैं? और उसका अटैचमेंट रोक सकते हैं। अटैचमेंट रोक सकते हैं, अच्छा ओके। अटैचमेंट रोकना बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि सर ये इवन, हाँ, वो एक्चुअली चेंज अटैचमेंट तो रोक, कर सकता है सर, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, हाँ दैट्स द प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि अटैचमेंट अगर वो हम लोग रोक पाते ना तो वायरस स्प्रेड नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी कोरोना का दिखा है बेटा, अभी कोरोना डेंजरस हो रहा है। आपको आपको अगर मालूम होगा तो कोरोना अभी महाराष्ट्र में कल उद्धव ठाकरे जी ने एक जन जन संबोधन किया था, यानी ही हैड अनाउंस फ्यू थिंग्स कि अगर आपने केयर नहीं लिया तो शायद लॉकडाउन वापस करना पड़ेगा। फाइन बेटा, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे थे, बराबर है, कम होते हुए नंबर्स बढ़ रहे थे। तो ये सेकेंड राउंड जो है जो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्यों डेंजरस हो जाता है? तो उसका रीज़न आप समझ सकते हैं बेटा। कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो कोविड का पहला जो ट्रांसमिटर्स हुआ था वुहान में जो हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? कि वुहान में उसका ट्रांसमिटर्स हुआ था पैंगोलिन। पैंगोलिन नामक एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू ट्रांसफर हुआ था, बैक टू पैंगोलिन, पैंगोलिन टू ह्यूमन था, करेक्ट। और वायरसेस का प्रॉपर्टी क्या रहता है? ये खुद अपना कुछ नहीं बनाते हैं, ये लोग होस्ट के बॉडी में जाते हैं और होस्ट के बॉडी के सिस्टम्स के द्वारा अपने लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बनवाते हैं। यानी कैप्सिड भी वही होस्ट से बनवाते हैं। अगर वो रेट्रोवायरस है तो आरएनए भी होस्ट से बनवाएगा, और अगर डीएनए वायरस है तो डीएनए भी होस्ट से ही बनवाएगा, बराबर है। यही करता है ना वायरस, है ना बेटा। तो इसका मतलब ये डेंजरस क्यों हो जाता है? अभी अब इसका इसका बाहर का कोटिंग क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जब वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर गया तो उसके अंदर वो जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, उससे अपना कवरिंग बनवाएगा। अब वो वहां से दूसरा किसी ऑर्गेनिज्म में गया, मतलब उसी स्पीसीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे एचआईवी में ट्रांसफर हुआ हो, तो वो दूसरा ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन मेकअप, प्रोटीन मशीनरी को यूज करके वैसा प्रोटीन बनाएगा। तो यानी जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन कोट जो उसने पहले वाले में बनाया है सेम नेक्स्ट टाइम बन रहा है, ये प्रोटीन कोट अलग बन रहा होगा। तो हर बार वो प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड चेंज कर रहा है बेटा। तो हर बार वो कैप्सिड चेंज हो रहा है, तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और ये समझता है कि वो अपने अपने ही बॉडी का कंपोनेंट है, इसीलिए उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेटा अपन लोग कैप्सिड यानी प्रोटीन कोट को तो नहीं मार सकते, बराबर है, यू एग्री? यस सर। तो मैं बेटा ये आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो बेटा अपन उसके अलावा कुछ और ढूंढते हैं। चलो, वायरस के अंदर और क्या क्या चीज़ है बेटा? मैंने आपको बताया कि आपका एचआईवी जो है वो आरएनए वायरस है, जैसे कोविड है वैसे वो भी आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस का कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो खास रहेगा। आप कुछ सोच सकते हो उसके बारे में? ठीक है, मैं आपको कुछ बोलता हूँ बेटा। बेटा वायरसेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है डीएनए वायरस, दूसरा होता है आरएनए वायरस। ओके, डीएनए वायरस को हम लोग बोलते हैं सिमियन वायरस, SIMIAN, सिमियन वायरस, यानी इसके अंदर डीएनए रहेगा एज ए न्यूक्लियर मटेरियल। और आरएनए वायरस को हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस, यानी इसके अंदर आरएनए रहेगा एज ए न्यूक्लियर मटेरियल। कभी भी किसी वायरस में बोथ डीएनए और आरएनए नहीं होता है, या तो डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा। तो अभी जो एचआईवी है ना बेटा, उसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो है आरएनए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। अब ये रेट्रो वायरस अगर है तो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या मालूम है? कि ये वायरस को आपका सेंट्रल डॉगमा रन करना पड़ेगा।
सेंट्रल डॉग्मा आपको मालूम है बेटा? डू यू नो व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? यस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पूरा ट्रांसक्रिप्शन से करेक्ट लेके बेटा, हाँ ट्रांसलेशन। यस परफेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यानी सेंट्रल डॉग्मा का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। डीएनए गिव्स कमांड टू आरएनए, आरएनए में एमआरएनए पहले बनता है, एमआरएनए गेट्स कमांडेड टू आरआरएनए, आरआरएनए टू टीआरएनए, टीआरएनए एंड देन देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस। यानी इसको हम लोग सिंपली 3 प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में ट्रांसलेशन होगा, बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसका रिवर्स नहीं होता है, बराबर है, ये एक यूनिडायरेक्शन है, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसिस। अभी आप ध्यान से देखोगे तो एचआईवी में आरएनए है और हमारा बॉडी में हमारा जो सेल है उसमें डीएनए है। यानी सेंट्रल डॉग्मा के हिसाब से वो नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि आरएनए डीएनए को कमांड नहीं दे सकता है, बराबर है। तो आरएनए को अगर डीएनए को कमांड देना रहेगा तो उससे कुछ तो चाहिए रहेगा ना। तो कैन यू टेल मी बेटा, एचआईवी में ऐसा क्या है जो उसको हेल्प करता है आरएनए को डीएनए कमांड देने में? आपने कुछ तो पढ़ा रहेगा उसके बारे में। सर, रिवर्स सर एब्सोल्युटली ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प कर सकता करेक्ट, है क्या? यस। रिवर्स हाँ बेटा, रिवर्स ट्रांस, करके मतलब हाँ बराबर बराबर, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम है, आप उस वर्ड में ही देख सकते हो बेटा। वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स करवाता है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम है जो आरएनए वायरस को डीएनए को कमांड देने में हेल्प करता है। ठीक है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एक एंजाइम को ब्लॉक करना तो कर सकते हो, बराबर है। क्योंकि आप एंजाइम को कैसे ब्लॉक करते हो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नामक प्रोसेस से। यानी उसको ब्लॉक कर सकते हो, उसके साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो ताकि वो आगे काम ना कर सके, बराबर है। अगर आपने सपोजिंगली एचआईवी के लिए उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक जो एंजाइम है उसको आपने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? एचआईवी इंफेक्शन कर ही नहीं सकता है। मेक सेंस बेटा? क्योंकि उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है तो डीएनए को कमांड नहीं देगा, डीएनए को कमांड नहीं देगा तो होस्ट उसके लिए प्रोटीन नहीं बनाएगा, होस्ट उसको प्रोटीन नहीं बनाएगा या उसका कॉपी नहीं बनाएगा तो उसका आगे का डिवीजन बंद हो जाएगा। मेक सेंस बेटा? करेक्ट। तो जितने भी आपके मेडिसिन डेवलपमेंट है वो सारे के सारे एक ही चीज के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एंजाइम को ब्लॉक अगर कंप्लीटली कर पाए तो आप उसका लॉन्जिविटी रख सकते हो। लेकिन अगर वो एचआईवी वायरस का लोड ज्यादा हो गया है तो जितना वायरस जब तक डैमेज कर चुका है उतना तो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन आप उसको आगे डिवाइड होकर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करने को ब्लॉक कर सकते हो। तो यही बेटा एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो आज के डेट में अवेलेबल है। एआरटी बोलते हैं उसको, HART भी है, ART भी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी फॉर HIV। तो ये वर्क कैसे हुआ आपने? अब आप वायरस के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े हो, एक एंजाइम के पीछे पड़े हो। यानी आपके टारगेट्स ड्रग डेवलपमेंट के चेंज हो गए हैं। अब आप ओवरऑल ऑर्गेनिज्म या ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स पे अटैक नहीं कर रहे हो। क्योंकि बेटा अगर आपको याद होगा जैसे पेनिसिलिन, ओके, जो बैक्टीरिया के लिए एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक कैटेगरी में पहला एंटीबायोटिक आता है, वो कैसे काम करता है? वो आपके बैक्टीरिया के आउटर कोट को उस पर छेद करता है, बराबर है, दैट्स राइट। पेनिसिलिनेज एंजाइम उस ब्लॉकर होता है, लेकिन पेनिसिलिन बेसिकली एक्ट कैसे करता है? ड्रिल आउट करवाता है, उससे उसका लीकेज करवाता है, मटेरियल लीकेज। तो वो जो पॉइंट है वो आप क्या कर रहे थे? हम लोग टारगेट कर रहे थे ऑर्गेनिज्म पे या हेलो
Guys, are you able to hear me now? I don't know, एक मिनट के लिए. Yeah, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, 1 मिनट के लिए पूरा तो बेटा, सब लोग. यस बेटा, आई कुडंट अंडरस्टैंड क्या हुआ करके. ओके, तो बेटा अभी जो है आपका जो वायरस, अभी जो मैं बता रहा, जैसे बैक्टीरिया में, जैसे हम लोग टाइफॉइड बैक्टीरिया ले लेते हैं. ओके, तो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. कैन यू नेम द बैक्टीरिया बेटा विच कॉजेस टाइफॉइड? Salmonella typhi, paratyphi. Salmonella typhi, वेरी गुड. Salmonella typhi और Salmonella paratyphi, ये दो कैटेगरी के. वेरी गुड, दैट्स अ गुड आंसर बेटा. Paratyphi. तो Yes. बेटा, हाँ, तो पैराटाइफी में ए एंड बी होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है. तो हम लोग उसको टारगेट क्या करते हैं बेटा? तो सपोजिंगली अगर आपको टाइफॉइड का वैक्सीन बना, तो हम लोग क्या कर रहे थे? टाइफॉइड का फ्लैजेला, ओके, फ्लैजेलम को आपने यूज किया एज एन एंटिटी, वैक्सीन एंटिटी. तो क्या होगा कि आपका डिफेंस सिस्टम फ्लैजेला को आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो टाइप का फ्लैजेला वाला ऑर्गेनिज्म है तो फ्लैजेला को कैसे डिस्ट्रॉय करना मानता है. अब फ्लैजेला डिस्ट्रॉय किया तो इसका मतलब वायरस, बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन होना है, राइट. तो वैसा आपने सोचा था. लेकिन बेटा आज के डेट में अभी जो रिसर्च चलता है वो, उसमें हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के फीचर्स, बैक्टीरिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उन सब पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर होने वाले एंजाइमेटिक प्रोसेस या उसके अंदर होने वाले बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को टारगेट कर रहे हैं. यानी वी आर रीच्ड आउट अ लेवल वेयर वी आर टारगेटिंग जेनेटिक लेवल या मेटाबॉलिक लेवल या द लेवल्स एट एंजाइम केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं बेटा. तो इसका मतलब टारगेट्स चेंज हो गए हमारे. नाउ वी डू नॉट लुक एट द एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स, बट वी आर लुकिंग एट द इंटरनल फीचर्स, इंटरनल टारगेट्स. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक और कंसेप्ट बोलता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अभी केमिस्ट्री, आपका आपने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ा है, सबने पढ़ा है केमिस्ट्री का. तो बेटा केमिस्ट्री में पहले जब स्टडी करते थे तो हम लोग बोलते थे बेटा 3 बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीजें बोलते थे. एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर बोलते थे. ओके, अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर हम लोग क्या बोलते थे? वो प्रॉपर्टी था उसका. मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग देख के बोलते थे भाई ये एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है, बराबर है. आज के डेट में हम लोग उस बेसिस पे कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि उसके बेसिस पे पहले जो आइडेंटिफाई होता था वो फैक्टर्स क्या था? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. तो आपने अगर लेबोरेटरी में देखा होगा तो एक कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का पहला तरीका होता था भाई कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, ये सारा प्रॉपर्टीज देखते थे, बराबर है बेटा. लेकिन बाद में आपके मैंडलीव नामक एक साइंटिस्ट आए, करेक्ट. तो मैंडलीव ने क्या प्रॉपर्टी बताया बेटा? कैन यू टेल मी, मैंडलीव ने किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करने को बोला? आपने मैंडलीव नामक साइंटिस्ट के बारे में सुना है बेटा, राइट? तो मैंडलीव ने किस तरीके से आइडेंटिफाई करने को बोला प्रॉपर्टी को? मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनना था, राइट? मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है बेटा? यस गाइस, guys, are you able to hear me beta? I don't know whether you are able to hear me. Hello guys. So can you repeat the question? Actually, I'm having Okay some beta, network issues. ओके बेटा, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना बेटा, तो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? यस मुस्कान बेटा, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir, I am able to hear you. Sir, Mendeleev was the first scientist, no, to arrange the 18 elements. Yes, yes, that's correct. He was the So, first who, sir, yeah, हाँ. उसका बेसिस क्या था बेटा? राइट राइट, उसने वो दीवार पे चिपकाया था बहुत सारे पार्ट. He did on the
I am not exactly sure about this, but he did on the number of electrons, like on the basis of number of electrons. नो बेटा नो, वो बाद में हुआ था। उसने पहले दिया था एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास वाज द सम टोटल ऑफ Yeah, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बेसिस पे किया था बेटा। protons तो and पहला neutrons. हाँ Yes, sir. हाँ, तो एटॉमिक मास पे किया था। यानी मैनलीव के एग्जाम्पल के बाद, मैनलीव के वे ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आप किसी भी केमिकल एंटिटी को उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे बोलते थे। और एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या हुआ, बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी फाइंड आउट हुए। क्योंकि उसने जब वो प्लेकार्ड बना के दीवार पे लगाया था, तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जहाँ पे उसने एटॉमिक मास बताया, बट एटॉमिक मास जिस चीज का बताया वो एलिमेंट था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ एलिमेंट मालूम ही नहीं था। तो फिर लोगों ने उसके बेसिस पे ढूंढना शुरू किया। करेक्ट। बाद में एक प्रॉब्लम के कारण वो फेल हुआ था। फेल क्या हुआ था, क्योंकि वो आइसोटॉप्स कंसिडर नहीं कर पाया था। क्योंकि आइसोटोप्स वाले में प्रॉब्लम हो गया था। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइशियम, 3 है। ओके, तो एटॉमिक मास 1, 2 एंड 3 आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइशियम, नॉट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो नहीं कर पाने के कारण देयर वाज अ न्यू थॉट प्रोसेस। फिर बाकी काफी साइंटिस्टों के मिल के काम करने के कारण यू हैड द न्यू नॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे में क्या था, आइदर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये सेम होते हैं एक एटम में, उसके बेसिस पे आप क्लासीफाई करते थे। तो अब अभी जितना भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हो वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बोलते हो। तो सेम वे जब हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में भी चेंज हुआ। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जो क्लासीफाई करते थे वो एरिस्टोटल के टाइम पे 2 कैटेगरी था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। करेक्ट। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स करके उसने क्लासीफाई किया था, उसको नाम दिया था ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, बराबर। बाद में प्रॉपर्टी वाइज उसमें प्लांट्स को उसने क्लासीफाई किया। तो पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, हर्ब, श्रब, ट्री, आउटसाइड लुक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। हर्ब छोटा होता है, श्रब उससे बड़ा होता है, ट्री एकदम बड़ा होता है, ऐसा। ठीक है। एनिमल का भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऐसे ही किया था, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। ओके, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे बहुत सारे गड़बड़ी की थी। जैसे मॉर्फोलॉजिकली हम लोगों ने सी हॉर्स को सी हॉर्स नाम दिया था क्योंकि वो घोड़े जैसा दिखता है, जबकि ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहता है और वो बहुत छोटा है। ओके, तो ये अर्ली क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन दैट। तो मुझे मुझे बता सकते हो बेटा आज का लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? हेलो गाइस, आज का लेटेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे करते हैं बेटा हम लोग? अगर हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा उसके बारे में? सर बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिस। ओके बेटा, और स्पेसिफाई कर सकते हो प्लीज बेटा? एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। और थोड़ा स्पेसिफाई करोगे जेनेटिक्स में मतलब कैसे बेटा? जेनेटिक्स में मतलब कैसे, किस बेसिस पे आप बोलोगे कि भाई ये ह्यूमन है? सर वो जीन सर मैच करते कितना परसेंट ऑर्गेनिज्म से मैच होता है, तो फिर वो इवोल्यूशन सर ऐसा ओवरऑल सर डिसाइड करता है। करेक्ट करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बेटा। आपने जो बोला वो भी बराबर है, लेकिन बेटा एकदम प्रिसाइज कर सकते हो उसको? आपने जीन्स तक बोला, थोड़ा और प्रिसाइज बोल सकते हो? ऐसा क्या है जो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं भाई मंकीज हमारे एंसेस्टर्स है क्योंकि वो 99% सिमिलर लेकिन 1% डिफरेंट है। तो ये 1% कैसे निकाला अपन ने? सर फिजिकल ट्रेट के थ्रू निकाला हो सकता है, लाइक फिजिकल डिफरेंसेस तो होंगे ना, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नहीं दैट। बेटा, नहीं 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 बेटा, फिजिकल डिफरेंसेस नहीं बेटा, क्योंकि फिजिकल डिफरेंस हम लोग वही चले जाएंगे ना, मॉर्फोलॉजी और उस पे चले जाएंगे ना बेटा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पे चले जाएंगे। हम लोग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं देखते बेटा। हम लोग एकदम और एकदम एडवांस लेवल पे आ गए। आज की डेट में हम लोग जेनेटिक्स लेवल पे ही देखते हैं, मतलब जेनेटिक लेवल पे ही देख सकते हो आप।
यानी फॉर एग्जांपल आपको पहले क्या करना था, ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती थी, आजकल हमको ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज एक ड्रॉप ब्लड ओके आपको मिल जाए या एक हेयर का सैंपल मिल जाए, तो आप बता सकते हो किसका है, बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टाइप टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो उसमें अपने को पूरा ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। Yes. यार, तो वो लेवल पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, व्हाट आर वी लुकिंग एट? ओके मैं आपको बताता हूँ बेटा, चलो सर ठीक है। जेनेटिक सीक्वेंस सर। बेटा जेनेटिक सीक्वेंस बोला और थोड़ा सा और अंदर जाएगा बेटा, थोड़ा सा और, क्योंकि बेटा आपने जेनेटिक सीक्वेंस बोला तो सीक्वेंस भी बहुत बड़ा है ना बेटा, कुछ तो रहेगा उससे 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 छोटा कैटेगराइजेशन के, उससे छोटा, थोड़ा सा और छोटा। ठीक है बेटा मैं बोलता हूँ, बेटा हम लोग देखते हैं GC परसेंटेज। Yes, sir. Yes. G stands for guanine, C stands for cytosine। ओके हम Cytosine. लोग GC परसेंटेज देखते हैं बेटा। हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ ये अकेला देखते हैं कि भाई GC परसेंटेज कितना है। अभी GC क्यों देखते हैं, क्योंकि बेटा 80 एडेनाइन थाइमीन डीएनए में रहता है। ओके जब वो आरएनए में जाता है तो AU हो जाता है। तो अगर कोई कंपोनेंट मिला जिसमें डीएनए ही है तो अपन ये 80 वाला देख सकते हो, लेकिन अगर कंपोनेंट वो आरएनए या प्रोटीन ऐसा कुछ मिला तो अपन ये नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो बेस पेयर देखते हैं जो भले आरएनए हो डीएनए हो कॉमन है, वो एक ही है, ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्योंकि ATGC इज डीएनए पार्ट, AUGC इज आरएनए पार्ट, लेकिन दोनों में कॉमन एक ही है GC, यानी ग्वानिन साइटोसिन का परसेंटेज ऑफ एनी एंटिटी विल टेल यू कि ये कौन सा स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। आपका पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी चीज पे आता है कि GC परसेंटेज कितना है। मेकिंग सेंस बेटा, इज दिस क्लियर टू यू? तो हम लोग वो जो फिनोटाइपिक, लुकिंग एट मॉर्फोलॉजी, लुकिंग एट एनाटॉमी, लुकिंग एट फिजियोलॉजी, उसके बजाय में वी आर लुकिंग एट जेनेटिक लेवल, वी आर जस्ट लुकिंग एट ओनली वन पार्ट, GC परसेंटेज, दैट गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा एडवांसमेंट है आज के डेट का। तो जब ऐसे अगर एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो आज हम लोग ड्रग डेवलपमेंट या मेडिसिन डेवलपमेंट या फार्मास्यूटिकल रिसर्च जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो वी आर एट अ डिफरेंट पैराडाइम। तो हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं, रीसेंट ट्रेंड्स इन ड्रग डेवलपमेंट क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कोई डाउट है बेटा? वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस ओके बेटा, तो अभी अपने को वो रेलेवेंस पता चलेगा जब हम लोग अभी ये जो वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा था उस पे लेके जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो में ड्रग टारगेट्स और ड्रग डिस्कवरी के बारे में अपन ने बात की थी। तो Today we start at the earliest phase of ओके अभी आपको शायद नहीं दिख रहा है शायद, कैन यू सी इट बेटा? यस सर। ओके यू कैन सी इट, ऑलराइट बेटा। तो दिस इज क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। अब हम लोग इसमें देखेंगे टारगेट डिस्कवरी आज के डेट में क्या है एंड व्हाई इज इट डिफरेंट। ओके अभी जो आपने पढ़ा बेटा वही स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट ही के स्टेजेस ही दिख रहा है आपको, बट ये आपको वो पर्सपेक्टिव बताएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रग डिस्कवरी का टारगेट अब मॉलिक्यूलर लेवल है। इट इज नॉट एट सेलुलर लेवल, इट इज नॉट एट टिश्यू लेवल, इट इज एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग साइटोकाइंस, मॉलिक्यूलर लेवल में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चेक कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ड्रग या मेडिसिन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस कॉल्ड एज फ्यूचर ट्रेंड और दैट्स द ट्रेंड विच इज करंट ट्रेंड। ओके बेटा, सो आई एम गोना प्ले इट फॉर यू, जस्ट लेट मी नो अगर आपको वॉइस आ रहा है इसका। तो drug discovery and development. That is deciding यस सर। on the साउंड आ रहा है ना? ओके बेटा, आई एम प्लेइंग इट। disease to treat and identifying a specific molecule which, when modulated, is predicted to influence the disease or symptoms. After today's lecture, you should be familiar with all the topics listed here.
Drug targets are a key concept in drug discovery, so you must be able to define what a drug target is, and you should be able to give examples. You should also become familiar with the factors that affect the choice of disease against which drugs are likely to be developed. Drug targets may be identified in several ways, but you should be able to compare and contrast the more traditional and modern approaches. Historically, there are many examples of drugs being discovered before their targets were known, and targets continue to be identified this way. But today, the main strategy is to research the disease in order to identify particular molecules that might make suitable drug targets. You should also be able to explain how a new drug target is validated and then exploited for drug discovery. At the end of the lecture, I will briefly explain how assays and screens are used to exploit targets. These will be followed up in detail in later lectures. So what exactly is a drug target? It is any molecule that a drug binds to produce its effect. Proteins are the mediators of most cellular activities, so it should not be a surprise to you that the vast majority of target molecules are proteins. The main proteins that drugs interact with are proteins that you should recognize as being essential players in cell signaling cascades. They are receptors, especially G-protein coupled receptors, enzymes, ion channels, and transporters. Increasingly, we are seeing drugs developed which interact with other cellular proteins, including adhesion molecules, structural proteins, and gene transcription factors. DNA, RNA, and other non-protein molecules can also be targets for drugs. In fact, many new anti-cancer drugs target DNA in some way. Of course, not all drugs are aimed. Around 17% are aimed at infectious microbes. For example, antibiotics, antimalarials, and insecticides. For such drugs to be safe and effective, it is actually essential that they don't interact with human targets. The 10% of miscellaneous drugs includes things like antacids, which have a chemical target to neutralize pH in the stomach, or some laxative drugs, which interact with the contents of the gut rather than the gut itself. Of the human drug targets, they break down as shown in this pie chart. By far, the majority of targets are G-protein coupled receptors or enzymes. The relative numbers of these have varied over the years. At one time, G-protein coupled receptors and other types of receptor represented the main drug target. But in recent years, they have been overtaken by enzymes as the most common drug target. The main enzymes targeted are kinases, which phosphorylate other proteins, and proteases, which break down other proteins. What I've shown you is how common different drug targets are in terms of the numbers of drugs that bind to them. So बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो these are the major targets which are available in terms of drugs being there. So these drug targets, basically when we are talking about these drug targets are enzymes. Can you see बेटा enzymes दिख रहा है आपको? First वाला ये आपका 2007 का ड्रग है. Drug targets are top 10 drugs in 2007. Can you see बेटा? Please do respond. So, या बेटा तो आप देख सकते हो बेटा पहला मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि इसमें आपको शायद वर्ड्स जल्दी से समझ में ना आए. बेटा आप फैट्स जानते हैं? चर्बी मतलब फैट्स. ओके बेटा फैट्स और ऑयल्स को टुगेदर आप क्या बोल सकते हो?
Can you give me a term? लिपिड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, लिपिड्स, परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। तो जब आप लिपिड्स की बात कर रहे हो, यानी अब आपका जो पहला जो ड्रग है उसका नाम है एटोरवास्टैटिन, ओके, इट्स अ स्टैटिन कंपाउंड। वो लिपिड्स, अब लिपिड्स लोअरिंग वाले में आपको चाहिए। लिपिड्स मतलब क्या होता है बेटा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज HDL एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LDL। HDL को हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वाले की, यानी अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है विच इज़ मेकिंग इट ससेप्टेबल टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो उसके बॉडी में, यानी ओबेसिटी वाला जिसका पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको आपने डिटेक्ट किया भाई ओबेस है, ओबेसिटी है उसको, ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना पड़ेगा? तो बेटा ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक एंजाइम है जिसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, HMCG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, ओके, रिडक्टेज वाले एंजाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उस रिडक्टेज को ब्लॉक करने के लिए यू हैव एन एंजाइम विच इज रिडक्टेज इनहिबिटर, तो दैट इज एन एंजाइम विच इज अ ड्रग। तो वो मेडिसिन नथिंग है, इट इज नथिंग बट इट्स अ एंजाइम विच इज अवेलेबल। तो एंजाइम इज अ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आपको समझ में आया बेटा? एटोरवास्टैटिन यूज्ड इज फॉर डिसलिपिडेमिया यानी ओबेसिटी, एंड एक्शन कैसा है? HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर नामक एंजाइम है या कंपाउंड है जो वर्क कर रहा है, जो बेसिकली एंजाइम को टारगेट करने वाला है। कौन सा एंजाइम को? HMG CoA रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करने वाला है, and that is the way how this drug is going to be acting. So this is a drug which is active against obesity, largest और या बहुत सबसे ज़्यादा जो सेल्स में बिका वो वाला ड्रग है एटोरवास्टैटिन। अभी क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. ओके यस ओके। तो अभी एक और एग्जाम्पल है। फर्स्ट वाला तो मैंने बता दिया आपको, अभी एक काम करता हूँ 10th वाला ही बताता हूँ, एटलीस्ट फर्स्ट और 10th वाला तो एटलीस्ट आपको बताता हूँ। बाकी का मैं आपको और भी, जैसे एस्थमा है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारा, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल बताना पड़ेगा। तो 10th वाला बता दो, 10th वाला आपको ज़्यादा अच्छे मालूम है। आपने एक डिजीज़ का नाम सुना है जिसका नाम है डायबिटीज़ बेटा। तो बेटा डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, आप बता सकते हो कौन कौन से दो टाइप का बेटा डायबिटीज़? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ बेटा आपको। बेटा हाँ बोलो, कोई बोल रहा है बेटा? सर टाइप 1 एंड टाइप 2 सर। नहीं बेटा, टाइप 1 टाइप 2 बेटा उस डायबिटीज मेलाइटिस का टाइप से बेटा, ओके। डायबिटीज में दो टाइप होता है, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस बेटा, ओके, दो टाइप होता है। हाँ, तो डायबिटीज मेलाइटिस में टाइप 1 टाइप 2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या बोलो तो, डायबिटीज में आपका डायबिटीज मेलाइटिस होता है जिसमें आपका पैनक्रियास नामक ऑर्गन, पैनक्रियास नामक ऑर्गन में बेटा सेल्स होते हैं। पैनक्रियास एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो एंडोक्राइन मतलब हार्मोन प्रोडक्शन वाला है। तो पैनक्रियास के अंदर सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ठीक है बेटा। तो अल्फा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, ओके। बीटा सेल प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, बता सकते हैं कौन सा बेटा? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, का नाम इंसुलिन बेटा, इंसुलिन, ओके। और डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है सोमेटोस्टैटिन। तो अगर किसी बंदे में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है या इंसुलिन प्रोडक्शन बंद है तो उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस। इज इट क्लियर बेटा? प्लीज से यस इफ इट इज क्लियर। यस ओके थैंक यू बेटा। सो बेटा ये हो गया पहला टाइप का डायबिटीज। दूसरा टाइप का डायबिटीज है बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस, यानी ये कंडीशन है जिसमें
आपके बॉडी में, यानी जिस पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस है उसके बॉडी में ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जिसका एक्शन किडनी पे होता है, किडनी के हेनलीज लूप पे होता है, वो वहां पे रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज नहीं करवा पाता है। यानी ये एक ऐसा बंदा है जिसके बॉडी में ग्लूकोज जितनी मात्रा में आता है वो यूरिन में छोड़ देता है, यानी यूरिन में यूरिया के साथ साथ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो पाने के कारण उसके यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है। यानी अगर यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है तो इट इज डायबिटीज इंसिपिडस, और अगर ब्लड में ग्लूकोज रुक रहा है इट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा डायबिटीज मेलाइटस की। ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस माना है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी है। ओके, तो इंसुलिन डिपेंडेंसी यानी मतलब ऐसा पेशेंट जिसको इंसुलिन हमेशा चाहिए, इंसुलिन की इंजेक्शन जिसको लगाना पड़ता है, ठीक है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज वाला फिनोमिनन। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसमें इंसुलिन की मात्रा थोड़ी सी मात्रा में पैनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है, जो काम चला हुआ है, लेकिन उसको कुछ मेडिसिन देके आप इंसुलिन फ्री रख सकते हो, ठीक है, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन ना लेना पड़े, ऐसे कर सकते हो। तो बॉर्डर लाइन वाले उसको बोलते हैं। तो ये दोनों केस में आपको क्या हो रहा है, आपको क्या पता चल रहा है कि भाई इंसुलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इंसुलिन तो आप दे नहीं रहे हो, आप देखो बेटा मेडिसिन में आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रहे हो जिसका नाम है पायोग्लिटाजोन, दिख रहा है बेटा आपको, दिस इज पायोग्लिटाजोन नामक कंपाउंड दे रहे हो। तो ये पायोग्लिटाजोन मतलब इंसुलिन तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप क्या करोगे, या तो इंसुलिन का इंजेक्शन, वही इंसुलिन दे दो यार उसको, दैट्स अ नॉर्मल वन। तो ये क्या कर रहे हो आप, तो अपन मैकेनिज्म समझते हैं। इंसुलिन बेटा आपके बॉडी में हार्मोन है, करेक्ट। तो वो करता क्या है इंसुलिन, क्या वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाता है? यस गाइस, प्लीज आंसर। डज इंसुलिन ब्रेक डाउन ग्लूकोज? यस सर, वो उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता होगा ना, ग्लूकोज को हम मेटाबोलाइज कैसे कर सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वो इंसुलिन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट बेटा। कैसे बताता हूँ, आपका जो मैकेनिज्म है जिसको आप बोलते हो डाइजेशन प्रोसेस, उसमें क्या होता है, आपका सलाइवा में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है, और एक और एंजाइम एमाइलेस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेस। ये दोनों एंजाइम एमाइलेस है, यानी एमाइलेस मतलब क्या होगा, ये स्टार्च को, यानी आपने गेहूं खाया, चावल खाया, तो उसके अंदर बेसिकली स्टार्च है, स्टोर्ड फूड, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो, पॉलीसैकेराइड, उसको ब्रेक डाउन करते हो, ब्रेक डाउन करके मोनोसैकेराइड तक लेके आते हो। डायरेक्टली मोनोसैकेराइड में नहीं लेके आते हो, पहले स्टार्च ब्रेक डाउन होता तो एमाइलोस बनता है, इसीलिए हम लोग उसको एमाइलेस नाम देते हैं, ठीक है। फिर वो डाइपेप्टाइड और सैकराइड, डाइसैकराइड से और ब्रेक डाउन होता जाएगा, तो इट इज फाइनली फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज आप एब्जॉर्ब करते हो, तो ये एंजाइम अगर ब्रेक डाउन करता है सैकराइड को, तो हम लोग उसको सैकरेज या एमाइलेज को कैटेगरी में डालेंगे। तो ये इंसुलिन एमाइलेज ऐसा ब्रेक डाउन तो नहीं करता है, वो क्या करता है, उसका एक ही काम है, वो सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक करवाता है। ओके, यानी ब्लड में आए हुए ग्लूकोज को एवरी सेल शुड टेक इन, तो उसके लिए वो ट्रिगर करवाता है। और ट्रिगर कैसे करता है, वो ट्रिगर करवाता है, हर सेल का एक रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं पीपीआर गामा। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे एक एक्शन लिखा हुआ है पीपीआर गामा, ये रिसेप्टर का नाम है बेटा, इसे न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर है जो ग्लूकोज को सेल के द्वारा अंदर लेने में कमांड एक्सेप्टेंस देता है। अगर ये स्टिमुलेट होगा, और ये इंसुलिन इसी को स्टिमुलेट करता है, पीपीआर गामा को स्टिमुलेट करता है। तो पीपीआर गामा को जैसे स्टिमुलेट किया तो सेल अपटेक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना सी प्रोटीन। सी प्रोटीन आपने सुना होगा, सी प्रोटीन कैन गो आउट एंड पिक अप मटेरियल एंड टेक इनसाइड द सेल, वैसा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज करवाता है। तो सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इज द
So it has. Hello, guys. Can you hear me? Yes, Suresh. Okay, but बीच में I thought I was saying things, but I thought you did not hear me. Okay, so मैं बोल रहा था बेटा पीपीआर गामा वो रिसेप्टर है जिसको इंसुलिन ट्रिगर करता है, और इंसुलिन के ट्रिगर करने पर पीपीआर गामा स्टिमुलेट होने पर ग्लूकोज को सेल अंदर ले लेता है, यानी सेल अपने साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ले लेगा। फिर साइटोप्लाज्म में लिया और ग्लूकोज को कैसे उसको आगे लेके जाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रोसेस में यूटिलाइज करना है, वो सेल का काम है, यानी इंडिविजुअल सेल का काम। तो ये जो काम है एक और कंपाउंड कर सकता है। ये ग्लिटाजोन नामक जो कंपाउंड है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, वो भी यही काम कर सकता है जो इंसुलिन करता है कि पीपीआर गामा को जाके स्टिमुलेट कर सके। तो इसीलिए हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज के लिए पायग्लिटाजोन ड्रग मॉलिक्यूल, अब यहां हम लोग टारगेट बना रहे हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर को टारगेट करने वाला केमिकल मॉइटी, यानी वो एक बायोमॉलिक्यूल को टारगेट कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? So these are the ways how the molecular targets of new drugs are being built upon. Does it make sense to you, beta? Please say yes, beta, so I can understand you have understood it. Hello? Hello? Yes, Suresh. Yes, sir. Okay, okay. Thank you, beta. Thanks for confirming. Thanks for confirming, beta. So now you understood, beta, how these drugs are now in picture, beta. So you can see these drugs are, the target types are very different. They are using enzyme, they are using transporters, they are using GP proteins, they are using nuclear receptors as the drug discovery targets. Okay, so this is the change which you are seeing now, where we are now targeting molecular level targets. तो बेटा अभी जब आप रिसर्च के लिए जाओगे किसी भी कंपनी में, कहीं पे भी ज्वाइन होगे, भले वो जेनरिक हो या फार्मा हो या कोई भी सेक्टर कंपनी हो, you would have to understand कि the targets have changed. It's molecular targets now, beta. Just like how we are using chemical understanding based on atomic number, not on chemical properties only. Yeah, how we are looking at organisms based on CG percentage, yeah, GC percentage, not on any morphological phenotypic factors. वैसे ही drug development today is based on molecular targets. तो 2007, अब आप देखोगे 2016 पे आते आते भी क्या चेंज हुआ है। ओके, सो आई एम प्लेइंग इट आउट फॉर यू। यू कैन सी द स्क्रीन गाइस, प्लीज से यस सो आई कैन जस्ट प्ले। स्क्रीन इज विजिबल? Hello guys. Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Playing. Okay, thanks beta, playing for you. Now I'm going to show you the targets of the most popular drugs, at least as indicated by sales. As much as anything, this reflects the prevalence of the disease being treated. The table here lists the 10 best-selling drugs in 2007. Despite most targets being enzymes, only one of the top-selling drugs acts on an enzyme. Half of the drugs act on G protein coupled receptors, and most of the others act on transporters. Note that all of the drugs listed here are small organic molecules. Up until recently, this was true of almost all drugs. So let's see how the bestseller chart looked 7 years later in 2014. The changes between 2007 and 2014 reflect developments in drug discovery that were brought about as a consequence of the introduction of new molecular technologies. Only 3 drugs on this list are small organic molecules. Only the fluticasone-salmeterol drug combination, which is used for asthma, retained its ranking over the 7-year period.
As this remained the preferred treatment, it looks like no better drugs were developed for asthma over that period. Rosuvastatin, used to treat hyperlipidemia, did not make the top 10 in 2007, although it was available, but it is from the same drug class as atorvastatin, which previously ranked number 1. This reflects clinical trials in the intervening period, which demonstrated a better outcome for patients taking rosuvastatin, so it replaced atorvastatin as the drug of choice. The neuroactive drug, aripiprazole, was a newcomer to the list in 2014, taking 10th spot. It was available for schizophrenia and bipolar disorder well before 2007, but after 2007, its indications were widened to include depression, so more patients had access to it. These drugs are all small organic molecules and target receptors and enzymes. But what of the other drugs on the list? The first thing to notice is that G-protein coupled receptors and enzymes do not feature among the targets of these top-selling drugs. That may be because new technologies have now made it possible to interfere specifically with the activities of proteins, which proved previously to be poor targets for small organic molecule drugs. These drugs are all large protein molecules, known as biologics or biopharmaceuticals. There are two main types of biologic drug, and both feature in this list. Humanized antibodies raised against protein targets are increasingly used to treat inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis and Crohn's disease, as well as some cancers. The other type of biologic is a recombinant protein, which is produced by engineering organisms to express the DNA coding for a human protein. In the case of So beta, you can see now how the changes have occurred. In 2014 में हम लोग एक step और आगे चले गए हैं. We are talking about genetically changing the gene map and producing recombinant structured entities. तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं बेटा recombinant protein technology. तो आप देख सकते हो दो डिजीजेस के लिए, डायबिटीज के लिए recombinant protein से इंसुलिन ग्लार्गिन यूज कर रहे हैं जो काइनेस लिंक रिसेप्टर है, यानी हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अभी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवा रहे हैं. देन यू हैव इटानरसेप्ट जो कि अगेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए. एंड ये दोनों सेकंड और फिफ्थ नंबर के टॉप मोस्ट मेडिसिन में से हैं इन 2014, जो कि आपके पहले इसमें नहीं मौजूद था, 2007 में नहीं मौजूद था. यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? This is what I wanted to show you guys. Is it clear to you, beta? Hello? Please respond, beta. Okay, beta. So this is an understanding, beta, which you guys have to develop. Ki the targets of drug developments have changed in the recent years as it is advancing further. So what is happening is we are able to govern the entire development at the stage which you call as low as the molecular mimicry or the genetic makeup level. Fine, beta. So that is what was the message for today. Is it clear to you? Everything till now, beta, what has been explained? Yes, sir. Okay, beta. So I'll not bore you further because I know about 40 minutes, about one hour 40 minutes is more than enough for you to digest up. So should I be stopping here now and I continue ahead next time? Yes, sir. So, sir, I have हाँ बेटा बोलो. doubt regarding one medicine. Yes बेटा बोलो. The medicine name is glyciphase 850, and the drug content is metformin. Metformin बेटा, that is for diabetes के लिए यूज होने वाला Yeah, मेडिसिन. sir. Metformin. Yes. हाँ हाँ. तो So, sir, metformin how वाला does it help in PCOD?
बेटा वो पीपीआर गामा स्टिमुलेट करता है, तो इट हैज बीन फाउंड दैट वो पीसीओडी में भी, पीसीओडी में क्या होता है बेटा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, दैट मीन्स एनसिस्टमेंट्स ऑब्जर्व किया गया है इन द ओवेरियन रीजन। ओके, तो ओवेरियन एनसिस्टमेंट का एनहांसमेंट भी पीपीआर गामा स्टिमुलेशन के कारण होता है। ओके बेटा, so metformin has been used by doctors to target that, to reduce the chances of re-emergence of cyst, एनसिस्टमेंट वापस ना मिले इसके लिए वो यूज करते हैं बेटा, राइट। तो उससे क्या होता है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है और आपके ओवेरियन फॉलिकुलर हीलिंग में हेल्प होता है बेटा, तो इसीलिए वो सेकेंडरीली यूज करते हैं। डज इट मेक सेंस बेटा? So does this medicine helps in weight loss also? Sorry beta, I couldn't understand it beta. Can you say it again? So does this medicine, this glycipase 850, this helps in like a weight loss also? Okay. Beta, last part of it, of your question, I couldn't understand beta. Can anyone else just tell me what your friend is trying to say beta? Because I'm not able to understand the last part because of signals. Can you repeat otherwise beta? Yes, sir. Sir, actually, I asked this glycipase 850 I have mentioned, does it help in weight loss also? Like losing weight, which has been gained due to thyroid or some kind of PCOD problem? Oh, okay, okay. The other reasons for PCOD बेटा, PCOD के बेटा कई reasons हो सकते हैं। PCOD के बेटा कुछ reasons ऐसे होते हैं, for example, PCOD can be caused because of fimbriae, fat accumulation in the fimbriae section. आपको मालूम है fimbriae are the structures which pick up the ovum. तो अगर वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन हो जाए, वेबिंग हो जाए, तो भी पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं बेटा। तो देन दे मे वांट टू यूज अ डिसलिपिडोमेटिक ड्रग बेटा, क्योंकि वो फैट अटोर्वास्टेटिन टाइप का ड्रग यूज करेंगे, क्योंकि उसमें फैट डिपोजिशन तोड़ना रहेगा बेटा। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड अंडर सोनोग्राफी बाय द डॉक्टर बेटा, तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं बेटा। ओके, डज इट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Thank you, sir. Okay, welcome beta. Okay guys, so this was the thing which I wanted to cover today. So I'll see you soon, most probably on Saturday or maybe on Thursday, as I get time beta. So I promise to take on either of these 2 days. So till that time we meet next. Thank you so much for attending the lecture, and I think I have been able to make a lot of points clear to you, preparing you for the novel part of your addressing into the job market and into the research stream, where you may be able to use some of the information which I have gained in all these years, which I am sharing with you for your benefit beta. Thank you so much. I wish you a goodbye and a good day to you. Thank you guys. Bye bye.